Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the another topic from the chapter number 4, moving charge and magnetism of the class 12 physics syllabus pattern CBSE NCERT. Okay, student. Today's question is more important, totally based on the Lorentz force. Okay, student, discuss the motion of the charge particle in a uniform magnetic field. What is the meaning of the uniform? Here we used a word discuss the motion. That means we have to define the motion of the charge particle in a uniform magnetic field. What is the meaning of the uniform? देखिए, आपने स्कूल में देखा होगा यूनिट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है ताकि सब एक जैसा हो। लेट वी कंसिडर दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय द टू रिप्रेजेंटेटर। फर्स्ट वन इज द डॉट एंड सेकंड वन इज द क्रॉस। मतलब हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट एंड क्रॉस, that means inside and outside of paper. Okay student, हमको सब कुछ समझ आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट और क्रॉस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ पेपर। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डॉट 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 इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटेंसिटी। आप देखिए सभी को, मतलब मैंने कोशिश करा है सभी डॉट की साइज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और बीच की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल। दैट मीन्स दिस फिनोमिना आर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म दैट मीन्स एक जैसा, एंड बी रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। You know that very well. Vector E represent the intensity of electric field, that means electric field, and B represent the intensity of magnetic field, that means a magnetic field. अभी तक हमने क्या समझा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम और कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, with the initial velocity perpendicular to magnetic field. Most important concept, we have to discuss the motion of the charge particle under the uniform magnetic field when the initial velocity perpendicular to magnetic field. that means अगर जो magnetic lines की डायरेक्शन ऐसी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी, मतलब both are perpendicular to each other. B and V both are perpendicular to each other under the condition of Gaussian. Okay student, क्या करना है? We have to discuss the motion of charge particle in a uniform magnetic field when magnetic field and velocity both are perpendicular to each other. Okay student, this is a simple question. Now solution of the question. Firstly, we define the uniform magnetic field capital B. What is the meaning of the B? B, that means a uniform magnetic field, and here let me consider any charge particle. Any charge particle mass will be equal of small m. The magnitude of charge will be equal of q and velocity will be equal of v. ध्यान से देखिए, let me consider a moving charge particle. Mass will be equal of small m, charge will be equal of q, and velocity will be equal of v. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होता है? बाय यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन कंटिन्यू अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमको कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना होगा। Due to flow of electricity in the continue form, we can produce the magnetic field. मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंसी में डेवलप हुआ है। और चार्ज पार्टिकल भी है, मतलब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कैसा फोर्स होगा? लोरेंज फोर्स। आपने कल देखा था लोरेंज फोर्स, दैट मीन्स अ total amount of force on any charge particle which moving in a uniform magnetic field. कल हमने ये डेफिनेशन देखी थी। तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना है? स्मॉल m,
magnitude of charge will be equal of q and velocity will be equal of v. So force are known as Lorentz force represented by capital F. Okay student, first one, consider a charge particle with charge q. What is the meaning of the q? Q, that means a magnitude of charge which is a moving with the velocity v. What is the meaning of the v? V, that means a velocity of moving charge particle under the magnetic field capital B. Three things are there. और लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा? Lorentz force. Student, we know that very well by the definition of Lorentz force. F will be equal of q v b sin theta. In the vector form we can written vector F equal to q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b. बहुत अच्छे से समझेंगे. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लॉरेंज फोर्स. क्या होता है लॉरेंज फोर्स? वेक्टर F इक्वल टू q इंटू वेक्टर v डॉट वेक्टर b. याद रहेगा यहाँ पर v दैट मीन्स अ वेलोसिटी एंड b दैट मीन्स अ रिप्रेजेंटेटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वेक्टर से स्केलर में लिखेंगे बाय यूज ऑफ साइन थीटा. यहाँ पर कितना है? क्रॉस, तो यहाँ पर कितना आएगा? साइन थीटा. ओके स्टूडेंट, वी नो दैट वेरी वेल. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, the angle between the velocity and magnetic field will be equal of 90 degrees, such that we can write theta will be equal of 90 degree. Theta 90, that means F will be equal of QVB sin 90 and sin 90 will be equal of 1. Okay student, so we can write F equal to QVB into 1 such that F equal to QVB. आपको मेरी बात समझ आ रही है स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने कितना फाइंड आउट कर लिया? द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स विल बी इक्वल ऑफ QVB. आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे बाय डेफिनेशन ऑफ द लॉरेंज फोर्स. मैंने यहाँ पर कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करके बताया है. F इक्वल टू QVB साइन थीटा. हियर थीटा विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री सच दैट साइन 90 इक्वल टू 1. सो F विल बी इक्वल ऑफ QVB. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट. नाउ एंड डायरेक्शन, ये जो मैंने बात बताई है इसी को मैंने लिखा है. जो डायरेक्शन है V और B के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर, विच इज अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? यू नो दैट वेरी वेल. फेमस महिमा चौधरी. F that means a direction of force, M that means a direction of magnetic lines, and C that means a direction of flow of current. Both are perpendicular to each other. तो यहाँ पर यही बात बोली है मैंने. The direction of force is perpendicular to V and B. Direction of force that means F will be equal. फोर्स की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री. सो यहाँ पर जैसे मैं 90, यू नो दैट वेरी वेल. ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा है स्टूडेंट. ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ सभी को. F इक्वल टू कितना होता है? QVB साइन थीटा, वेयर थीटा विल बी इक्वल ऑफ 90. सो वी गेटिंग F इक्वल टू QVB. नाउ मुझे F मिल चुका है. अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? वर्क डन. वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ वर्क डन. ठीक है, वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेट वी कंसीडर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ D and force will be equal of F such that dW इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ वेक्टर F डॉट ds. ये हमने 11th में पढ़ा है. सो F ds cos theta. Okay student, theta will be equal of 90 degree. By Fleming left hand rule we know that angle with the force will be equal of 90 degree. तो F की जगह पे कितना रखेंगे? सॉरी, थीटा की जगह कितना पुट होगा? 90. सो cos 90 will be equal of 0. देखिए यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ. थीटा will be equal of 90, so cos 90 will be equal of 0, so dW equal to F ds and 0, so dW will be equal of 0. Okay student, so we getting second one, dW will be equal of 0. What is the meaning of this sentence? Total work done under a uniform magnetic field ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल ऑफ 0. मैंने दो चीज निकाल लिए. फर्स्ट वन फोर्स, सेकेंड वन वर्क डन. ओके स्टूडेंट, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है
kinetic energy, work done, that means kinetic energy. So we can write kinetic energy or speed of charge particle will be constant. Okay student, now ध्यान से देखें, अब हमने दो चीज, सर ये डेरिवेशन काय के लिए है, मूविंग चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड सभी आइडेंटिटी को मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई करूंगा, डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पर फोर्स को डिस्कस कर लिया, सिर्फ वर्क डन हो गया। अब मैं वहां पर क्या निकालूंगा, जब भी ये मूविंग चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा, व्हेन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मोशन कंडीशन डेवलप द सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ होगा ये, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में क्या क्या होता है, फर्स्ट वन रेडियस, second one angular velocity, third one frequency, and fourth one time period. So now we define the four things, first one radius, second one angular velocity, frequency and time. Student ध्यान से देखेंगे, by the Lorentz force we know that F equal to QVB, by the work done we know that dW equal to 0. Then after we know that, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई भी सर्कुलर पाथ में क्या होता है, मोशन में होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 11th वी नो दैट वेरी वेल, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, one force applied towards in the direction of center, these force are known as the centripetal force according to the syllabus of the class 11. Centripetal force, that means FC will be equal of mv square by r. कहाँ पर पढ़ा था, क्लास 11 फिजिक्स। FC will be equal of mv square by r। और यहाँ पर हम दूसरी बात भी बोल रहे हैं कि मूविंग चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field acting by the Lorentz force, मतलब कहीं ना कहीं इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, फर्स्ट वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड वन इज द Lorentz force. By the condition of equilibrium we can say the Lorentz force will be equal of a centripetal force. Okay student, Lorentz force, that means a QVB will be equal of centripetal force, that means mv square by r. Okay student, simple mathematics, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, r इधर जा चुका है, इधर कितना आया, QVB, so b cancel by b, तो finally we getting r equals to mv by QB. देखिए फर्स्ट वन आपको सभी को समझ आया, व्हाट इज द मीन ऑफ द लोरेंज फोर्स, F इक्वल्स टू QVB sin थीटा, थीटा इक्वल टू 90, सो sin 90 इक्वल टू 1, सो F इक्वल टू QVB. सेकंड वन, वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ 0. व्हाई वर्क डन विल बी इक्वल टू 0? हियर द एंगल with the force with respect to velocity and magnetic field will be equal of theta by the Fleming left hand rule. So theta will be equal of 90, so cos 90 will be equal of 0 such that dW will be equal of 0. Second one, third one मैं रेडियस निकाल रहा हूँ, रेडियस के लिए मैंने एक सिंपल सी बात बोली, मूविंग चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द circular path, that means a centripetal force, and centripetal force and Lorentz force both are equal under the condition of equilibrium. So we can write QVB, Lorentz force कितना होता है, QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r. तो r हमको यहाँ निकालना है, ये न्यूमरेटर में, सामने लेके डिनोमिनेटर में, v से v कैंसिल, सो वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल ऑफ mv बाय qb. ओके स्टूडेंट, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेटिंग द थर्ड पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ रेडियस. नाउ वी टेकिंग द अनदर टॉपिक. हमने क्या निकाल लिया, फोर्स. फर्स्ट वन फोर्स, सेकेंड वन वर्क डन, सेकेंड वन वर्क डन. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इफ dW will be equal of 0, that means W will be differentiation convert into the form of इंट्रीगेशन. में बोल सकता हूँ यस और नो, ये डिफरेंशिएशन है तो इधर क्या हो जाएगा, ये इंट्रीगेशन हो जाएगा, एंड इंट्रीगेशन ऑफ 0 विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. मतलब सर हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला है अमाउंट ऑफ फोर्स, लोरेंज फोर्स विल बी इक्वल ऑफ QVB. सेकेंड वन वर्क विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वहां पर वर्क डन कितना होगा, कांस्टेंट. ओके स्टूडेंट, dW इक्वल टू 0, दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. थर्ड वन रेडियस. देखिए मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव in a circular path, so radius will be equal of mv by qb.
स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आर डिपेंड्स ऑन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, आर डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, आर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। ये आर इतनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द एमवी? अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 11th we know that मास इंटू वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ पी। ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा है जब आप न्यूटन सेकेंड लॉ को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम दैट मींस अ मास इंटू वेलोसिटी, सो मास इंटू वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट मींस अ पी। दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस। ओके स्टूडेंट, what is this? This is a third expression, first one, second one, third one. Next, angular velocity. What is the mean of the angular velocity? A ratio between velocity and radius, v by r. So student, v by r, what is the value of the r? p by qb. So qb ऊपर जाएगा तो कितना मिलेगा मुझे? v qb by p. ओके स्टूडेंट, अगर जो आप इसको चाहे, ठीक है, चाहे Q will be equal of mv such that we getting qb by m। जैसा आपकी मर्जी वैसा लिखिए। एंगुलर वेलोसिटी दैट मींस v by r that means p by qb transfer as a numerator, p will be equal of mv such that we getting the value of angular velocity। Now frequency that means omega by 2 पाई, एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है? QB बाय m अपॉन में 2 पाई, सच दैट QB अपॉन में 2 पाई m। दिस इज अ फाइनल रिजल्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी। वी नो दैट वेरी वेल, फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल ऑफ 1 बाय म्यू, ठीक है, म्यू, इट इज नॉट अ वी, इट इज अ म्यू। म्यू विल बी इक्वल ऑफ QV बाय 2 पाई m सच दैट फाइनल रिजल्ट 2 पाई m बाय QB। ओके स्टूडेंट, ठीक है, बोथ आर द रिजल्ट। फर्स्ट रिजल्ट लो रेंज फोर्स विल बी इक्वल ऑफ QVB, सेकेंड वन वर्क डन will be equal of constant, third one radius will be equal of P by QB, fourth one angular velocity will be equal of QB by m, frequency will be equal of QB by 2 pi m and time period will be equal of 2 pi m by QB। okay student, the demand of question discuss and all, मैंने लगभग सभी चीजों को इस आर्टिकल में डिस्कस करा है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन related to all points of moving charge particle under uniform magnetic field। thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada। student, please like, share, subscribe, also study from our channel। thank you so much।